Hello and welcome back to UPSC Akhada. Friends, today we will discuss an important judgment of Supreme Court which is related to the interpretation of section 125 of CRPC. This judgment deals with many aspects. First is protection of Muslim women. Second is equality among women of all faith. Third is right to get financial support for Muslim women after divorce. And fourth, indiscriminate application of secular laws on all the citizens of India irrespective of their religion. And finally, it deals with one aspect of Uniform Civil Code, that is equal alimony and maintenance laws in all faith and religion in India. So in this, Supreme Court interpreted section 125 of CRPC. Now you may ask, why CRPC when we switch to Bharatiya Nyaya Suraksha Samhita? It is so because this case was filed before 1st July 2024 and therefore the trial shall be conducted in accordance with CRPC and not in accordance with BNSS. So along with that, we will see number of articles from the Constitution of India and provisions of various international treaties, covenants, to which India is a signatory. These articles were dealt with by honorable judges while interpreting rights and protection of women. Emanating from the letters and spirit of Indian Constitution, they discussed these articles to support their reason to deliver a judgment in favor of Muslim women. So in this video we will discuss cases within this circle which started in Shah Bano case 1985 and now culminated in Abdul Samad 2024. All these are related to the interpretation of section 125 of CRPC. So let us start with the first one, Shah Bano case 1985. What was the interpretation of CRPC 125 in this case? Then what happened in Act of 1986? Then what was the interpretation in Daniel Latifi? And now what is interpretation of section 125 CRPC in Abdul Samad 2024? So first of all, let us see the facts of Muhammad Ahmad Khan versus Shah Bano Begum case of 1985. देखिए शुरुआत कैसे होती है। शाह बानो रहने वाली थी इंदौर की। 1932 में इनकी शादी होती है। शी गोट मैरिड टू अहमद खान and Ahmad Khan was an affluent and renowned lawyer of Indore. शादी के बाद इनके 5 बच्चे होते हैं. They both had 5 children. After 15 years of marriage, Ahmad married to another woman. मतलब दूसरी शादी इन्होंने कर ली. And after 30 years of second marriage, in 1975, Mr. Ahmad Khan abandoned Shah Bano without divorce. बिना ही डाइवोर्स दिए इन्होंने इसे घर से बाहर भेज दिया एंड प्रोमिस टू पे 200 रुपीज़ पर मंथ फॉर मेंटेनेंस. 200 रुपये महीना देने की प्रॉमिस की. 1975 से 1978 तक तो ये 200 रुपये आते रहे, बट सडनली इन 1978 ये जो पेमेंट था ये रोक दिया गया. मतलब मोहम्मद अहमद खान अब ये 200 रुपये इनको नहीं पे कर रहे थे. बिकॉज ऑफ दिस शाह बानो फाइल्ड अ केस इन लोअर कोर्ट, Family Court of Indore under CRPC 125. अब यहाँ से CRPC को भी जानना जरूरी है कि क्या इसमें ऐसा था कि जिसको लेकर ये केस फाइल हुआ. Now what CRPC 125 says? It is about order for maintenance of wives and children and parents. It says if any person having sufficient means neglects or refuses to maintain his wife, unable to maintain herself, legitimate minors, legitimate or illegitimate childs, his father or mother unable to maintain themselves, अगर ऐसा है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकते हैं उनको इस मेंटेनेंस के लिए, और इस मेंटेनेंस के ऑर्डर को फुलफिल ना कर पाने पे 1 साल की सज़ा भी हो सकती है वारंट इशू करके. अब यहाँ ये 3 बातें जानना जरूरी है. सबसे पहले सफिशिएंट मीन्स. मजिस्ट्रेट ये इंश्योर करेंगे कि जो हस्बैंड है उसके पास सफिशिएंट मीन्स हैं ये एलिमनी और मेंटेनेंस देने के लिए. दूसरी बात, दे आर विलफुली नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग टू मेंटेन. एंड द थर्ड थिंग इज द वाइफ
और द चिल्ड्रंस इज अनेबल टू मेंटेन देमसेल्फ, ये तीन चीज़ें फुलफिल होने के बाद मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर फॉर एलिमनी और मेंटेनेंस। तो इस सेक्शन के अंडर उन्होंने फाइल की एप्लीकेशन और केस स्टार्ट हुआ। इस एप्लीकेशन के फाइल होने के बाद अहमद खान ने ट्रिपल तलाक दे दिया। किसको? शाहबानो को। ट्रिपल तलाक का मतलब 3 बार तलाक बोल देना, इससे मैरिज खत्म। और साथ ही इन्होंने इद्दत प्लस मेहर, ये टोटल अमाउंट शाहबानो को पे कर दिया, जो कि था 5,400 रुपये उस समय। अभी 2 वर्ड हैं, इनका क्या मतलब है? इद्दत और मेहर। इद्दत का मतलब ये होता है कि शादी के ख़त्म होने के बाद, मतलब डाइवोर्स से लेकर 3 महीने तक का पेमेंट, उसकी मेंटेनेंस उसके हस्बैंड करेंगे वाइफ का। और मेहर का मतलब होता है शादी के समय एज एन गिफ्ट जो हस्बैंड वाइफ को देते हैं, वो प्रॉपर्टी, वो अमाउंट, वो सारा मेहर का जो अमाउंट है डाइवोर्स के ऊपर वाइफ को दिया जाएगा। नाउ लोअर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप 25 रुपये महीना, 25 रुपये पर मंथ शाहबानो को हमेशा पे करेंगे। अहमद खान एज एन रिनोन्ड लॉयर इसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट चली गई। हाई कोर्ट में केस जब चला तो उसमें हाई कोर्ट में फैसला आया कि 25 रुपये पर महीना बहुत कम है, इस अमाउंट को बढ़ा के 179.20 पर मंथ कर दिया। मतलब फैसला अहमद खान के खिलाफ आया। देन अहमद खान मूव टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला सुनने के बाद बताया कि दिस 179.20 पर मंथ इज़ ओके, बट अलोंग विद दैट आपको 10,000 रुपये वन टाइम पेमेंट भी शाहबानो को करना पड़ेगा, बिकॉज इन्होंने जो खर्चा किया है इस केस के दौरान। तो ये पूरी कहानी है। 1978 में ये होता है, देन 1980 में ये केस का फैसला आता है हाई कोर्ट में, देन 1985 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि मुस्लिम वुमेंस भी CRPC 125 के थ्रू मेंटेनेंस ले सकती हैं। और जो इद्दत का समय होता है, बिकॉज देखिए मुस्लिम वुमेन और जो मैन हैं उनकी शादी और उनका डाइवोर्स इज़ हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द मुस्लिम लॉज, दैट इज़ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। और उस एक्ट में ये है कि 3 महीने की इद्दत का जो समय होता है उस समय अमाउंट देना होता है। इसके बाद द हस्बैंड इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल टू पे एनी काइंड ऑफ अमाउंट। बट यहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 179.20 रुपीज़ पर मंथ इनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, इवन आफ्टर इद्दत पीरियड मेहर पूरी चुकानी होगी और 10,000 रुपये का एक मुश्त अमाउंट इनको देना होगा। सो इट इज़ इन कॉन्ट्राडिक्शन टू द मुस्लिम लॉज। अब ये जो फैसला आया, इस फैसले के खिलाफ में विरोध होना तय था। मुस्लिम कम्युनिटी ने देखा कि दैट दिस इज एन अटैक ऑन पर्सनल लॉज। मैरिज एंड डाइवोर्स आर टू बी डिसाइडेड बाय शरीयत एप्लीकेशन लॉज ओनली एंड नॉट एज पर द CRPC or any other secular law. Then comes into picture a organization, All India Muslim Personal Law Board. All India Muslim Personal Law Board vehemently opposed this judgment and they pressurized government to pass a bill to nullify this judgment. Now at that time Rajiv Gandhi was the prime minister and he was having 414 MPs with him in Congress. लोकसभा के अंदर 414 MPs थे कांग्रेस के। तो ये इट वाज लाइक ए ब्रूट मेजोरिटी। आज तक इतनी मेजोरिटी किसी के पास नहीं हुई, तो वो इजीली कोई बिल पास कर सकते थे। एंड ही गोट प्रेशराइज्ड एंड इन्हीं के कैबिनेट के अंदर कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे जिनका नाम था आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान वाज इन ओपोजिशन टू पास एनी बिल टू नलिफाई दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। और इसी कारण से उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं केरला के। देन व्हाट हैपेंड, द लॉ वाज पास्ड इन पार्लियामेंट एंड द लॉ वाज कॉल्ड एज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986। नाम से आपको लग रहा होगा कि इनके प्रोटेक्शन की बात हो रही है, बट दैट वाज नॉट द केस। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स फ्रॉम डाइवोर्स 1986 सेड दैट, क्या प्रोविजन थे इसके अंदर? सबसे पहले CRPC 125 shall not apply to Muslim women. Then a fair and reasonable maintenance within iddat period is to be provided by the husband to the wife.
तो यहाँ ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट विद इन इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड आप जानते होंगे, अब 3 महीने का समय आफ्टर डाइवोर्स, 3 मंथ आफ्टर डाइवोर्स, प्लस मेहर, ये सब पेमेंट करना पड़ेगा हस्बैंड को वाइफ को। तीसरा इसके अंदर प्रोविजन था मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड अप टू 2 years ऑफ एज, जब तक वो बच्चे 2 साल के नहीं होते तब तक उनका मेंटेनेंस। एंड फोर्थ प्रोविजन था ऑल प्रॉपर्टी गिवन टू हर बाय हर रिलेटिव, फ्रेंड्स, हस्बैंड एंड रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। तो जो भी प्रॉपर्टी वाइफ को दी गई थी शादी के समय, वो सारी प्रॉपर्टी वाइफ को देनी होगी। तो ये 4 प्रोविजन इसके अंदर दिए गए इस एक्ट के अंदर। एंड आफ्टर दैट इट वॉज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट दैट इफ दिस इज नॉट फॉलोड then magistrate if satisfied may order within 1 month of filing application। अगर ये ऊपर जो 4 प्रोविजंस हैं ये हस्बैंड अगर फॉलो नहीं करता, then magistrate after 1 month of filing of application can order for fulfilling these provisions। if still husband is not fulfilling these orders, then the magistrate can issue a warrant and 1 साल तक की जेल उस पति को दी जा सकती है। इवन देन, अगर ऐसा होने के बाद भी इफ वुमन इज नॉट एबल टू मेंटेन हरसेल्फ आफ्टर इद्दत पीरियड, मतलब 3 महीने के अंदर उसको ये सारा पेमेंट करना है। 3 महीने के बाद भी अगर वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है या उसने दूसरी शादी नहीं करी है, तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इसके लिए भी एक्ट के अंदर प्रोविजन है। पहला, रिलेटिव कौन? ऐसे रिलेटिव जो इस वुमन की प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेते इन फ्यूचर इफ शी डाइड, उसकी मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी में जिसको भी हिस्सा मिलता, वो सारे रिलेटिव मजिस्ट्रेट बताएंगे कि ये रिलेटिव कौन है, और वो फाइनलाइज करेंगे कि ये रिलेटिव अपनी कमाई में से कुछ शेयर विल प्रोवाइड टू द वाइफ, दैट डाइवोर्स्ड वाइफ, फॉर हर मेंटेनेंस। अगर कोई भी रिलेटिव ऐसा नहीं है, उस वाइफ का कोई रिलेटिव ऐसा नहीं है जो, या फिर जो रिलेटिव है वो अनेबल है ऐसा करने के लिए, देन मैजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट द डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दैट वाइफ। अब डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कोई भी मुस्लिम पर्सन अपनी ओर से कुछ दान दे सकता है, गिफ्ट दे सकता है। फिर वो जो पैसा है उसको वक्फ बोर्ड कंट्रोल करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, मैनेज करेगा फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड प्रोटेक्शन एंड हेल्प ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। तो ये फाइनल हो गया मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 के बाद। इट मीन्स दिस एक्ट हैज़ नलिफाइड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन शाह बानो केस। अब CRPC के तहत नहीं, इस एक्ट के तहत इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट वुमेन कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस एंड एलिमनी। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2001, डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट जो 1986 का एक्ट का था, उसके अंदर इस वर्ड की इंटरप्रिटेशन के बारे में क्वेश्चन उठा। फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट विद इन इद्दत पीरियड, कि ये फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट क्या होता है, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है। और डेनियल लतीफ़ी वही पर्सन है जो शाह बानो के एडवोकेट थे, शाह बानो केस 1985 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दैट अमाउंट शैल बी decided based on 3 things. First is standard of living of that woman. Third, income of husband, कि कितनी कमाई करते हैं उस हिसाब से अमाउंट डिसाइड करेंगे। एंड देन what is the amount which is required by that wife to live a dignified life। इस तरह अमाउंट डिसाइड करेंगे। फेयर एंड रीजनेबल ये होगा। और एक बहुत ही क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन इस पूरे फ्रेज का सुप्रीम कोर्ट ने डेनियल लतीफ़ी केस में किया। इसमें यह भी कहा साथ में दैट 3 months वाज नॉट द टाइम लिमिट फॉर मेंटेनेंस।
3 months was not the time limit for maintenance but the deadline to decide on the provisions of the maintenance for a former wife's resident, food, clothes and so on. इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 3 महीने का मतलब ये नहीं है कि 3 महीने के बाद आप पैसा नहीं देंगे. इसका मतलब ये है कि इन 3 महीनों में आपको डिसाइड करना होगा कि फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट कितना होगा. ये जो अमाउंट है फॉर थ्रू आउट हिज लाइफ, जो वूमेन की पूरी ज़िंदगी है उसे एक डिग्निफाइड तरीके से बिताने के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो डिसाइड करने का टाइम पीरियड है 3 महीने. ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. इसके बाद भी आप पेमेंट देते रहेंगे. आप एक साथ दे सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स लॉज 1986 मेड मेंटेनेंस एक्सटेंड टू द होल लाइफ ऑफ द डाइवोर्स वाइफ अनलेस शी गेट मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम. जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर ली थी तब तक आपको ये पेमेंट करना है. ऐसा क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट के फेयर एंड रीजनेबल प्रोविजन का किया. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2024. अब ये केस आता है मोहम्मद अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना. इस केस के इफेक्ट इस तरीके से हैं. पार्टीज एंटर द मैट्रिमोनियल कॉन्स्टोरियम ऑन 15/11/2012. 2012 में इनकी शादी होती है. किसी रीज़न से इनकी शादी टूट जाती है एंड हस्बैंड लेफ्ट द मैट्रिमोनियल होम ऑन 9/4/2016. सब्सिक्वेंटली वाइफ इनिशिएटेड ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हर हस्बैंड. इन रेस्पॉन्स हस्बैंड कुछ इद्दत का पैसा भेजते हैं, लगभग 15,000, और साथ में तलाक दे देते हैं कि ये लो तलाक और ये इद्दत का पैसा, अब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती नहीं है, किसी तरह का केस मेरे पे तुम कर नहीं सकते. उन्होंने इद्दत लेने के लिए मना कर दिया. इंस्टीड शी मूव्ड ए पिटिशन फॉर इंटरिम मेंटेनेंस अंडर 125 CRPC 1973 बिफोर फैमिली कोर्ट. कोर्ट ने ऑर्डर किया एलिमनी 20,000 रुपये. हस्बैंड मूव टू हाई कोर्ट एंड देन टू सुप्रीम कोर्ट एंड दिस इज द केस. यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद ये केस आता है और सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या कहते हैं. सबसे पहले प्राइम कंटेंशन देख लो हस्बैंड का. सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद हस्बैंड क्या बोलते हैं, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 और CRPC 1973 डू नॉट प्रिवेल इन लाइट ऑफ इनएक्टमेंट ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986. इन्होंने कहा कि CRPC 125 सेक्शन जो है ये मुस्लिम वुमेन्स पे अप्लाई नहीं होता है बिकॉज पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया था मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, जिसमें बताया गया था कि फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट देंगे 3 महीने के अंदर. उन्होंने डेनियल लतीफ़ी का कोई जिक्र यहाँ पे किया नहीं. उन्होंने कहा कि जब तक ये एक्ट है तब तक CRPC 125 यहाँ मुस्लिम वुमेन्स पे अप्लाई नहीं होता है. नाउ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट 1986 एक्ट इज नॉट इन डेरोगेशन ऑफ सेक्शन 125 ऑफ CRPC. ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मुस्लिम वुमेन्स को प्रोटेक्शन देते हैं. दे आर नॉट इन डेरोगेशन, they are supplementary rather. If Muslim women are married and divorced under Muslim law, then section 125 of CRPC as well as provision of 1986 are applied. It is the choice of Muslim woman that he can file an application through section 125 or through act of 1986. Security of residence of Indian women have to be protected and enhanced. तो इसमें क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि मुस्लिम वुमेन को बाकी फेथ की वुमेन से अलग डिस्क्रिमिनेट करके नहीं देखा जा सकता. इट इज़ वॉयलेटिव इफ वी डू सो देन इट इज़ वॉयलेटिव ऑफ मैनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि कोई भी मुस्लिम वुमेन जिसका डाइवोर्स हुआ है वो सेक्शन 125 CRPC में भी जाके अपना मेंटेनेंस मांग सकती है और एक्ट ऑफ 1986 के थ्रू भी अपना मेंटेनेंस मांग सकती है. इन दोनों ही प्रोविजंस के अंदर CRPC 125 और एक्ट ऑफ 1986 दोनों में ही ये प्रोविज़न है कि थ्रू आउट हर लाइफ अंटिल शी रीमैरी हस्बैंड हैव टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू दैट पर्टिकुलर वुमन. एंड इस केस के दौरान जो कि हमने शुरुआत में देखा, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग आर्टिकल्स का जिक्र किया कॉन्स्टिट्यूशन के. दैट इज़ आर्टिकल 14. ये कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ. तो जब अगर हम बात करते हैं मुस्लिम वुमेन की या हिंदू वुमेन की तो दोनों ही सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और दोनों के लिए ही लॉ बराबर होना चाहिए. दिस इज अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन आर्टिकल 15 विच प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, कास्ट, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ. तो यहाँ रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता कि एक रिलीजन की वुमेन को कुछ राइट्स मिलते हैं, दूसरी रिलीजन की वुमेन को दूसरे राइट्स मिलते हैं. आर्टिकल 21 विच इज़ अबाउट द डिग्निफाइड लाइफ,
right to dignified life, protection of life and personal liberty except according the procedure established by law. And Article 38, which is part of DPSP, Directive Principle of the State Policy, which directs the state to secure a social order for the protection of welfare of the people. So it is the duty of the state to provide protection and welfare to all its people equally. Then Article 39, which directs the state to ensure and health and strength of worker and tender age of children are not abused. तो जो डाइवोर्स्ड वाइफ है उसके अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के अंदर इस तरह के काम नहीं करने पड़े, जो अब्यूज़ करते हैं उनकी टेंडर एज को, ये भी ड्यूटी है स्टेट की टू एंश्योर. देन कोर्ट डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 2 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. दीज आर द कोवेनेंट्स टू विच इंडिया इज अ सिग्नेटरी. तो हमें इनके अकॉर्डिंग भी अपने लॉज को बनाना चाहिए. ये कहता है द स्टेट states that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in the declaration without distinction of any kind, not even of religion. Article 14 of ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. Article 14 of ICCPR states that all persons shall be equal before the court and tribunals and guarantees a fair and public hearing by competent, independent, and impartial tribunal. Article 26, equal before law and are entitled without any discrimination to equal protection of law. So equality की बात कर रहे हैं. Article 2 of CEDAW, Covenant on Elimination of all forms of discrimination against women, obligates state to condemn discrimination against women in all forms and to pursue a policy eliminating discrimination against women. इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा. The Covenant on Elimination of all forms of discrimination against women 1979, commonly referred to as CEDAW, recognized among others the right of women to equality irrespective of religion as a human right. As a signatory to CEDAW, India is committed to adopting a woman-friendly legal system, policy, practices. So this is what Supreme Court said in this particular case. तो यहाँ से क्लियर हो चुका है. फर्दर जो हमने शाह बानो में देखा, जिसकी हमने बात की शुरुआत के अंदर, कि वी हैव कम्प्लीटेड ए फुल सर्किल विच स्टार्टेड इन शाह बानो. यहाँ से शुरुआत हुई थी. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शाह बानो को अहमद खान 179.20 रुपीज़ पर मंथ देंगे, 10,000 रुपये देंगे, मेहर की राशि देंगे, और ये हमेशा चलेगा. इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द इद्दत पीरियड. उसके बाद इसे नलीफाई किया गया. डेनियल लतीफ़ी ने फेयर एंड रीजनेबल को इस तरह से बताया कि दैट इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द इद्दत पीरियड. एंड नाउ अब्दुल समद 2024 इट हैज़ क्लैरिफाइड दैट सेक्शन 125 of CRPC is complementary or supplementary to the Act of 1986. यहाँ पे ये भी बात देखने की है कि constitutional this Supreme Court bench has not declared this act unconstitutional because this is not contradictory to section 125 of CRPC. तो यहाँ हमने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया है और यहाँ मुस्लिम वुमेन्स आर equal in the eyes of law as far as their right to maintenance and alimony is concerned. That's all about this judgment. See you in the next class. Bye bye. Thank you.